Friends, our show's name is The Mind Talks, which the podcast we do here in Vabi Satori studio under the Eighth House production. Today I am going to bring to you a very unique personality. And I mean it when I say this unique personality because that is the agenda of the Mind Talk show, that we try to bring to you some unique personalities, and all those personalities have their unique stories. When I say unique personality, it doesn't mean that celebrity or having achieved something in life. No, these personalities have a unique story, and they like to share those stories with us in this podcast in Wabi Saduri studio. और मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, खुशी इसलिए भी होती है बिकॉज द पर्सनालिटी इज सच ए वाइब्रेंट एंड लविंग पर्सनालिटी दैट यू योर सेल्फ फील वाइब्रेंट एनर्जी इन यू. तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. एंड दिस पर्सनालिटी बिलोंग्स टू जेन जी. In fact, it was very difficult for me to also pronounce it Gen Z. So I asked my daughter, what is this Gen Z? And she explained to me. So this personality belongs to Gen Z. And he is very close to my heart also, not only because he is a wonderful personality, but also because he originally, natively, he belongs to Kerala. And some of you are aware that I graduated from Kerala. So wherever I find some unique personality from Kerala, I try to chat with them. So his name is Prince. He belongs to Kerala, I believe Wayanad district or somewhere. Is it true, Prince? Yes, So uncle. over to you. Tell me about yourself because I want to keep it very simple. So let us start by understanding what is your background and what makes you unique, because you just now you heard that I am calling you unique again and again. So do you think you are unique before you start your introduction? Do you have some unique stories? I believe, uncle, everyone has their own unique ways and unique stories, right? And I have always believed that my life is a unique story itself. And again, it's still a work in progress. And every day I expect to live it to the fullest. And yeah, and I am from here, Delhi itself. My parents' origins are from Kerala. My dad is from the beautiful hills, Wayanad, and my mom is from Tiruvalla side. And I have been living here in Delhi for my longest life. I have born and bred in Delhi's life culture itself. And it's a fast life, but I enjoy it. And I do get to enjoy the Kerala's beauty now and then, right? So I am a mix of both, connected with nature and city life itself. So yeah, that's pretty much it about me. So you are born here in Delhi, Yes, born and and brought you up. mentioned about Tirula, Tiruvalla, correct. Tiruvalla. Is it That's some backwaters side. is it somewhere around Kochi? Yes, Ah, it's close by to Kochi. Acha, it is close to Kochi. Hmm. And you are aware, na? I graduated from Kozhikode. Right, yes. So that's why I Kottayam feel. side, yes. Kottayam side, okay, okay. Hmm. So Kottayam, yes, even I have been to that backwater area, Kottayam. So you are born in Delhi, brought up also in Delhi. Right. And so tell me a difficult question. Which one you like, Delhi or Kerala? And complete honesty, Kerala, uncle. I think Kerala because I go there for my vacation and I get to enjoy the sceneries, both the rivers and both the mountains. And that's something. I'm more of a nature person. And being close to Delhi, I keep on traveling to the Himachal side every month, every now and then in 6 months, 4 months. Right, I like to travel a lot. Right, and city life gets a little bit boring because I get bored by the city traffic and buildings. I like to enjoy the nature more in perspective. I think it's in my blood itself. Prince, when I think about, sometimes I don't even pronounce properly the Gen Z, because it is Z and what we call it Gen Z. When I met you, but when I see you an ideal candidate because when I take it from a spiritual point of view, so I also see a old soul in you, you know. And when I say ideal, so ideal because the old soul knows how to navigate this particular, era of civilization Hmm. with more maturity. Hmm. I right after school when I entered college, I saw a lot of people doing internships and all. And again, being in Delhi, I was limited with very a small amount of pocket money, and I wanted to explore more, go on trips. But internships and all those payment, I won't be able to travel. मैं उतने पैसों का कहाँ ही घूम पाता था.
तो मैंने सोचा कि करें क्या, हम इंटर्नशिप लेते हैं, नॉर्मल चीज़ें लेते हैं। डिजिटल मार्केटिंग उस टाइम बूम हो रहा था काफ़ी सारा, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे ज्वाइन किया मैंने पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइम। डिड थोड़े बहुत इंटर्नशिप्स, पैसा है। बस उस टाइम पे मन था कि बस ट्रैवल करने का। एट दैट टाइम इनिशियली ये था कि आई गेट इनटू अकाउंट्स, फाइनेंस, समथिंग, बट उसके बाद लेटर ऑन इट मेड मी रियलाइज कि वो थोड़ा बोरिंग कल्चर है। एंड व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग जिसमें ट्रैवल ज़्यादा इन्वॉल्व था, आई वांट टू डू समथिंग इन ट्रैवल रिलेटेड। तो एज अ माइंड स्कूल टाइम में ये था कि हाँ, इफ़ आई एम टेकिंग कॉमर्स, ये चीज़ें तो उस टाइम से हमारे दिमाग में ये होता है कि हाँ, इसी करियर पाथ में चलते हैं। इधर इट्स लाइक तुम कॉमर्स ले रहे हो तो बिजनेस लॉज में जाओ या फिर अकाउंटेंसी में जाओ। एट दैट टाइम अंकल टाइम्स काफ़ी चेंज हो रहे थे उस टाइम पे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, शुड आई चूज़ अ हाई पेइंग जॉब और शुड आई चूज़ अ जॉब दैट मेक्स मी हैप्पी। तो उस टाइम पे वेरी यंग था, सबको पैसा ही चाहिए होता है, सब Is it? सोचते हैं So कि you had this dilemma that you want to go एट for दैट टाइम, high paying job or और जॉब happiness दैट of मेक्स doing मी job. हैप्पी, हाँ, और Mhm. कुछ अपना खुद का करूँ। वेरी यंग था, फ्रेश था, मैंने जो दूसरे लोगों को काम करते हुए देखा है, पैसा कमाते बट दे आर नॉट हैप्पी। पैसा है उनके पास काफ़ी बट उनका टाइम नहीं है। एंड मैं और मी एंड मेरे जो फ्रेंड सर्कल रहते थे, हम बोलते थे कि यार पैसा होने के बाद विल डू दीज थिंग्स। एंड जब मैं देखता हूँ उनके बड़े या उनके माँ बाप ही, उनके पास टाइम नहीं मिलता, तो हम कहते हैं यार ये तो फिर मुश्किल है, ये कैसे होगा, पैसा है हम बट घूम नहीं पा रहे हैं, तो क्या करना है। देन आई मेट कपल ऑफ मोर पीपल जिनको अपना खुद का कुछ करना था। एंड आई वाज नेवर लाइक कि कोई एक बिजनेस किसी और काम में, अकाउंट्स, मैथ्स, टैली करना, ये सारी चीज़ें डिडंट मेक मच सेंस टू मी। मैंने कहा कि यार ये चीज़ें कल को आगे कंप्यूटर्स या चीज़ें ईजी फास्टर हो जाएगा, एंड इसमें मेरा क्या रोल है। आई वॉन्टेड टू डू समथिंग दैट प्रोवाइड मीनिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ चीज़, एंड देन स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन एंड विथ ज़ीरो See, you एक्सपीरियंस। are a sophisticated, presenter. हाँ। So you are just making all these statements, or really? Because sometimes what would have happened is हम्म। you didn't want to study much, you could not score much, so नहीं नहीं, so you gave justification नहीं नहीं, that. आई वाज नहीं नहीं अंकल, इट वाज नॉट लाइक दैट कि आई वाज बोर्ड विद स्टडीज और एनीथिंग लाइक दैट। आई हैड कपल ऑफ थिंग्स ऑन माय माइंड एट दैट स्टेज कि आई was good at economics and good at accounts and good at all those things. Maths was a little bit tough for me, but I had good teachers at that time, right? So even when one of my teacher in 12th standard, she asked me, what do you want to be when you grow up, right? Someone said doctor, someone said this, you never said, right? But she made this assignment. She used to think like I'm the fun guy, so उन्होंने मेरे को क्लास स्टेज में खड़ा किया और बोला कि सबसे अपने अपने ड्रीम्स के बारे में पूछते हैं, ये करते हैं। शी वांटेड दैट फन, उनके पास एक फ्री पीरियड था, तो ये सब किया। एंड घंटी बजने, जस्ट व्हेन शी वॉकड आउट, शी केम बैक, कहते सबसे पूछ लिया प्रिंस, तुमसे नहीं पूछा। एंड Mhm. सबका मजाक भी उड़ाया, फन भी किया हमने, सबको Mhm. मोटिवेट किया, तुमने नहीं बताया। तो शी सेड, डू यू वांट टू बी अ प्रीस्ट और समथिंग, क्योंकि मेरे को लगता है तुम्हें बस इन्फॉर्मेशन शेयर करने। मैंने कहा मैम नहीं, इट्स समथिंग कि मैं बता नहीं सकता, अभी बताऊंगा तो क्या कहते हो, आई फील लाइक वो सच नहीं होगा, या इससे बेटर है कि मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है लोग हंसेंगे या चीज़ें हैं। Mhm. बट इससे बेटर है कि आई वांट टू कीप इट प्राइवेट, एंड कभी ना कभी जब आगे जाके करूंगा, दैट्स व्हेन आई टेल इट। तो शी सेड, समथिंग बिग यू वांट टू डू? आई सेड हाँ, समथिंग बिग आई वांट टू डू, बट नॉट थ्रू जॉब और एनीथिंग, बट But you're not something. sure what big. Right. Not sure what big. It's something that I want to build on my own. So do you think you were different? I. Because the purpose of you having here is, of course, the mind talks, unique personality and Hmm. all. So I consider you unique from many ways. So, but do you think you were different in your Gen Z? Very. Very. Mhm. I feel like of my own age, a lot different, a lot different. So did that scare you also sometime under the peer pressure, There parental, was there was that scare, वो Mhm. था, थोड़ा डर लगता था कि यार तुम पार्ट ऑफ द ग्रुप भी नहीं बन पाओगे, अच्छा चीजें ऐसा हैं, कहते थे कल्चर। लोग। लगता था कि डिफरेंट क्यों है इतना, तेरा वो लाइक आपके पास जब सिमिलर होते हो, सिमिलर आइडियाज, पैशंस होते हो, देन दैट्स व्हेन यू कनेक्ट मोर, दैट्स व्हेन यू सोशलाइज मोर। माइन मेरा ऐसा था कि फ्लेक्सिबल था, लोगों के साथ आके मिल के बात करने का, ओपन था। आई वॉज ऑलवेज ओपन टू लर्निंग एंड लिसनिंग। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगता था, बट हाँ, मैं कहीं कहीं ना कहीं अडेप्ट भी करने की कोशिश करता था। अगर इस फ्रेंड सर्कल में हो तो इस टाइप का बनूं और इस टाइप की बातें एम्बिशन करूं, इस फ्रेंड सर्कल में तो इस टाइप की बातें भी करूं। तो काइंड ऑफ समवेयर डाउन द लाइन मैचिंग दोज टू पर्सनैलिटीज, वो अभी भी एजेंसीज में काफ़ी है। कुछ लोगों के मल्टीपल फ्रेंड सर्कल्स है, दे डोंट हैव अ सिंगल आइडेंटिटी, वो एक प्रॉब्लम है कि तो हमारे पास आप एक सिंगल आइडेंटिटी नहीं होती उस तो टाइम पे। आपका जो डिफरेंस है, आपने बोला मैंने उसको अडाप्ट करने की हम्म। कोशिश की, हम्म। बट यू आर अवेयर दैट यू आर डिफरेंट एट दैट टाइम, यस। ऑफ योर एज पीपल। हाँ, क्योंकि काफ़ी एनर्जी निकलती थी मेरे को, कुछ कुछ सोशल सर्कल में मेरे अंदर से काफ़ी एनर्जी निकलता था। इट डिमांडेड अ लॉट बिकॉज आई वाज नॉट बीइंग नेचुरली माई सेल्फ। एंड कुछ कुछ सोशल सर्कल में इट फेल्ट वेरी कंफर्टिंग।
during backdoor discussion, you also mentioned about that you were lucky to have some good mentors. Yes. Okay, and I had stopped you because I wanted to ask you this question in the podcast itself. Why do you think you had good mentors in your life? Question, uncle. The simple reason being is मेरे को अभी भी उनका नाम याद है जिन्होंने मेरा लाइफ चेंज किया है एंड ये नहीं कि वो लोग मेरे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाते थे। मेरे हर एक टीचर जिन्होंने मेरा लाइफ चेंज किया है दे टॉट मी समथिंग अबाउट लाइफ। बच्चे जो स्कूल में आते हैं टीचर की बस बातें एक्सरसाइज 1 करो 2 करो होमवर्क ये करो या फिर ये सब्जेक्ट कैसे सॉल्व करना है। बट मेरी लाइफ में जो भी टीचर्स आए उन्होंने लाइफ के बारे में सिखाया है कैसे लाइफ आगे जाके बढ़ती है एंड हाउ यू हैव टू फेस लाइफ। बट वो चीज़ आई फील लाइक इतना मैं श्योर कर सकता हूँ कि मैं पहले जाके वो इग्नाइट कर सकता हूँ या फिर बोलता हूँ क्योंकि मेरे को उनको इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैं आपसे बात कर रहा हूँ इट्स अबाउट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस क्योंकि कल को अगर मैं भी फेस करूंगा आई थिंक आपने अच्छा डील किया है तो आप मेरे को थोड़ा समझाओगे। एंड हाँ इट फील्स लाइक और इंट्यूटिवली उन्होंने भी किया है उन्होंने वो फेस किया है एंड दे आर हैप्पी टू टॉक अबाउट इट। तो वो पहले मेरे को थोड़े समझाते थे क्लास बैकग्राउंड नॉइस होता था फिर मैम बाकी लोगों को भी शेयर करते थे है ना। दैट थिंग केम आउट नेचुरली फ्रॉम मी आई थिंक दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग इवन अगर मैं किसी से बात कर रहा होता हूँ चलते चलते नॉर्मली बात कर रहा होता हूँ तो इट्स मोर अबाउट वो अपने दे आर एबल टू ट्रस्ट मी एंड टेल थिंग्स टू मी मोर आई थिंक दैट इज अ यूनिक थिंग अबाउट मी आई फील लाइक विच आई नेवर नोटिस्ड क्योंकि मेरे को नेचुरल है सबके अंदर आता होगा but now it's Acha, one thing still. you mentioned that you told your teacher that Mhm. you have something as Mhm. a big thing for future which you're not going to share. Right, You wanted to keep that private. right. So how far you have traversed on that path of achieving the big thing It's still work in progress, in terms of uncle. percentage? गुड नाउ मतलब एट ट्वेंटीज I'll बी ऑनेस्ट मैं बताता हूँ ट्वेंटीज के टाइम पे हम कॉलेज टाइम प्लान ही करते थे यार रिटायरमेंट करेंगे जल्दी 20 एट द एज ऑफ 25 विल हैव अ सेटल्ड लाइफ आई यूज्ड टू फील लाइक मेरे को वो चाहिए था कि कर लेंगे हो सकता है आई यूज्ड टू हैव दैट काइंड ऑफ एम्बिशन। बट व्हेन आई एंटर जॉब सर्कल लाइफ चीज़ें डिसीजंस एंड लाइफ एंड बाकी रियल लाइफ हिट्स यू जेन जीज का वो चीज़ So है it is getting delayed, it but gets heavy it gets delayed हाँ heavy. it gets heavy But but you're sure that you'll achieve it. obviously हम्म। you can achieve anything तो uncle आज आप time बता अगर दो ना, निकल अगर जाए। आपकी वो मैम भी सुन रही होंगी हाँ तो शायद वो जानना चाहेंगे क्या था वो बिग आपका बिग फ्यूचर एम्बिशन। यू वांट टू शेयर? something हाँ वांट टू शेयर? something like I don't want to share it completely क्योंकि a हम्म। lot of people won't understand हम्म। I want to be the best of the best in what I do right now। हम्म। तो उसके लिए टाइम है अभी क्योंकि आई जस्ट डोंट वांट इट दैट प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ जिस काम पे जस्ट टू वर्क इट आउट बट Okay. मेरे को उसमें बेस्ट होना है But were इस you चीज़ clear में। about what you wanted to do and whatever you have really Yes. scaled up to? Were you sure then that you wanted to do this only, or you wanted to do something else and then change to this? I got into this uncle very early stage of I think you can say college. It was something like people said fast money, quick money Okay. type of thing, है ना? Okay. And I used to, and that's when I realized it's not fast money, it's not quick money, it's something bigger. Only 1% of the world even understands that, or even less than that person. Okay. And that's when I realized कि अगर 1% है तो it's I have to work 99% से भी ज़्यादा hard and ज़्यादा time. तो it's not something I can achieve let's say in 4 or 5 years, but with constant work, Really? it's This not. sort of clarity you had? दिस सॉर्ट ऑफ क्लैरिटी अंकल Then, क्योंकि बाकी सबके सब बोलते थे कि अभी करते हैं प्रिंस जल्दी कर सकते हैं करते हैं एंड देयर वर कपल ऑफ मोर फ्रेंड्स उन्होंने किया उन्होंने 2 महीने बाद 6 महीने बाद अबे नहीं ये सब नहीं होता है ये सब चलता नहीं है छोड़ दे रहने देते हैं दे ऑल क्विट इंस्टेड ऑफ आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन सही सवाल नहीं पूछा ये क्यों हो रहा है ऐसा व्हाई डिड इट एक्ट इन दिस वे व्हाट इज द कोरिलेशन टू इट। तो मैं बैठ के ड्वेल करता मैं घर जाके ढूंढता था रिसर्च करता था सर्च करता था है ना क्योंकि तब मेरे को पता चला मैं अकेला नहीं हूँ और भी लोग हैं एंड द कॉमन थिंग आई फाउंड बाकी लोगों के साथ जो इस चीज़ में है एंड करते हैं उन्होंने भी स्टार्टिंग जीरो से ही किया था एंड इट टुक देम 3 4 5 years Okay. इस पे कॉन्स्टेंटली वर्क करने का एंड ये नहीं कि लोग बताते गए सबको कि हाँ हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं क्योंकि 1% लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं तो 99% आउट ऑफ द वर्ल्ड दे वोंट बी एबल टू गिव देम करेक्ट काइंड ऑफ क्लैरिटी कि भाई कैसे करना है क्या करना है। सो इट्स समथिंग लाइक यू आर फाइटिंग योरसेल्फ विथ इट्स समथिंग कि ऑनेस्टली अंकल जितना मैंने अभी इसमें सीखा है कि तुम्हें बस अपने आप को कंट्रोल करना सीखना है जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं उसको कंट्रोल मत करो कंट्रोल व्हाट यू कैन दैट्स योरसेल्फ हाँ। एंड इट्स थिंग्स लोगों को लगते हैं बहुत ईजी है ये तो अपने आप को कंट्रोल बहुत ईजी सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को कंट्रोल करना।
तो गाइस आप देख रहे हैं ना, अब धीमे धीमे हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं. Although Prince is half of my age and it is very difficult to find such kind of personality. That's why I had told you also कि ये एक यूनिक पर्सनालिटी है फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. मैं उस टॉपिक पे आऊंगा प्रिंस अभी, क्योंकि जी. आपने इतनी अच्छी बात बोली ना. इट इज सो डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर सेल्फ. You may Right. still control, outside a little bit if you Correct. have power, more power, little more also, but controlling yourself is the most difficult thing. हमारे करती है. जनरेशन में अंकल अभी बहुत सेंसिटिव है, हम हम्म. लोग बहुत सेंसिटिव है. अगर कोई कुछ बोलता है करता है हमारे साथ तो हम थोड़े ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं. हम्म. हमसे अर्लियर स्टेज पे, आर हम्म. डैड्स के एज पे, हम्म. आपके एज पे, हम्म. आप लोग आई डोंट थिंक उतने आप लोग इतने इमोशनल लेते, किसी ने कुछ बोलते तो ज़्यादा बुरा नहीं फील करते थे. हम्म. बट हमारे में इसने कैसे बोल दिया, हम्म. ईगो फ्रेजाइल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. हम्म. वो चीज़ कंट्रोल करो. वो मैंने देखा हमारे कॉमन फ्रेंड्स में, कॉमन सर्कल में. हम्म. कई अगर इवन इफ अगर अच्छी जगह जाते हैं पार्टी करने में, आपस में लड़ाई हो जाती है बिकॉज ईगो क्लैशेस हो जाते हैं. एंड वो लोगों को पता नहीं होता कि वो लोग वहाँ फन करने के, बट ईगो क्लैशेस में लड़ाई हो जाती है एंड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उस पे. इंस्टेड ऑफ वो सिंपली अवॉइड कर सकते हैं. ये है कि बुरा ज़्यादा जल्द जाता है. आई फील लाइक हम बहुत मतलब सेंसिटिव तो हो चुके कारण हैं इस क्या चीज़ है? पे. आई थिंक अंकल सबके लाइफ के एक्सपीरियंसेस एंड जर्नीज होते हैं. तो मैंने देखा मेरे काफ़ी दोस्त अगर फेस करते हैं प्रॉब्लम्स तो वो बोलते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है. आधे लोग यही बोलते हैं मेरे साथ क्यों हो रहा है. आई यूज टू बी दैट. मैं शुरुआत में बोलता यार ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे से बहुत बुरा हुआ. देन आई हर्ड समवेयर कि यार बुरा हुआ बट यू सर्वाइव्ड, एंड आगे होगा बट यू सर्वाइव. ये मेन पॉइंट है, बट यू सर्वाइव. तो टफ सिचुएशन से स्ट्रांग बनते हो. एंड आई स्टार्ट कंपेयरिंग विद माई पेरेंट्स लाइफ में. मेरे मॉम डैड भी तो टफ सिचुएशन से हैं, हमारे मॉम डैड भी तो टफ सिचुएशन से हैं एंड दे सर्वाइव्ड. अब आए हैं तो मैं हर चीज़ को अपने आप पे ब्लेम करने के अलावा आई विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. इफ आई सर्वाइव्ड आई लर्न फ्रॉम इट एंड आगे बढ़ता हूँ. ये एटीट्यूड आई थिंक मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यार ठीक है हो गया तेरे साथ कोई बात नहीं बट इतना बुरा भी नहीं, यू When लर्न was फ्रॉम it? इट. अ लॉट ऑफ टाइम्स अंकल, अलग अलग When टाइम was पे. it first? व्हेन वाज फॉर मी द फर्स्ट टाइम हम्म. जब मैंने ब्लेम किया कि ये मेरे साथ क्यों हम्म. हुआ ऐसे. हाँ अंकल, मैथ्स में आई वाज स्ट्रांग टिल 10th क्लास. 11th क्लास में मैथ्स में धक्का मिला मुझे. आई मीन ट्यूशन में कहीं टेस्ट हुआ था एंड मेरे सर ने बोल दिया बेटा मैथ्स छोड़ दे, नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हेन ये मेरे साथ क्यों हो रहा है. दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार मेरे साथ क्यों हो रहा है. एंड आई स्टार्ट ब्लेमिंग माई सेल्फ, नहीं नहीं ये नहीं कर पाऊंगा मैं, यार ये मुश्किल है. बट मेरे को मैथ्स चाहिए था, है ना. एंड ट्यूशन सर ने बोला था ये छोड़ दे, क्योंकि अगेन ट्यूशन सर थोड़ा अलग प्रॉब्लम्स था. तो अब मेरे पास और कोई हेल्प करने को था ही नहीं. मॉम डैड को भी बोलूँ तो कोई नहीं. क्या दोस्तों ने बोला यार भाई मुश्किल है तो कोई बात नहीं करते हैं, वो लोग भी गिव अप करने में आ गए, किसी ने एडवाइस नहीं किया. तो आई थिंक आई वेंट टू द इंटरनेट. क्या कर सकते हैं, समवन गाइडेड कि देखो इट्स मैथ्स इज जस्ट समथिंग दैट यू प्रैक्टिस. प्रैक्टिस करो बेटर हो जाओगे. स्टार्ट बाय सॉल्विंग सम थिंग्स. सो आई स्टार्टेड स्पेंडिंग सम मोर टाइम. And then I went back to my sir and said, फिर से एक बार आप टेस्ट लो. And I give it, I tried it, and he saw it. He said, हाँ, your attitude has changed. You are now willing to learn. अगर तुमने उसी टाइम बोल के चला तो मैं अगेन आई सेड आई हैड गुड टीचर्स, Yeah. मेंटर्स. ये Oh, मेंटर अच्छा था. ही of course. टॉट मी इन दिस वे. Of It was course, very of brutal course. to me. मेरे पास ऑप्शन था कि मैं वापस जाऊं छोड़ दूं, बट आई डिडंट गिव अप. आई फाउंड आउट ऑन माई ओन वे. मेरे पास और कोई नहीं था, नो फैमिली फ्रेंड, किसी और जा नहीं सकता था. आई फाउंड माई वे एंड देन ही गाइडेड मी टू द राइट पाथ. 11th maths become easy, not that good. 60-70 percentage was good enough for me क्योंकि maths was not my main forte. 12th I got good enough marks, Wonderful. 75% was settled क्या with. बात है, क्या बात है, friends. See, so on this point, I want to ask you, Prince, कि Hmm. was it a blessing in disguise for you that nobody was there to support you, so you started digging yourself through internet? Yes, uncle. Yes, Yeah. if absolute. Now I feel like it's a blessing, uncle. Earlier I used to feel like कि नहीं यार बाकी सबको बहुत easy मिला है. But then somewhere down the line मैं ये सोचता था अगर if I have a life जहाँ पे मैंने सब मेरे कंट्रोल में, that will be a very boring life. Now I have a life जहाँ पे मेरे को कल नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होगा. तो that's more exciting life. Hmm. And that's the life I chose, I believe. And so I have settled with it. And now आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद इट. आगे मेरे पास और ऑप्शंस है, मैं कर सकता हूँ. इंस्टेड नाउ आई एम नॉट ड्वेल्ड इन पास्ट. प्रिंस, मुझे और स्पिरिचुअल अपने बताइए. आई वोंट से स्पिरिचुअल बिकॉज यू आर टू यंग टू, although you understand everything, but I believe you had lot of special experiences in your life which motivated you, which guided you, maybe from out of world situation or something like that. There have been some times, uncle, but mm, not entirely where I would say कि I had that higher level of spiritual or something. For me, the entire word of spiritual, there's a higher power in something I believe, right? जहाँ पे
it gives me, I am able to dream, and I try to find peace, or I try to find a vision in my dreams. And it's very exciting because it's a new world, new place for me. So, in that terms पे, I started exploring it more. I started to try find meanings in it. तो there was this vision. I think मैं किसी को बताता तो I think लोग हंसेंगे या कुछ करेंगे, कहीं पढ़ा हुआ कहीं सुना हुआ देखेंगे. क्या है वो? But honestly uncle, ये वाला vision मेरे पास आया था. So there's this vision where जहाँ पे whenever I, and this was me जब मैं I was in स्कूल टाइम पे फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक, आई यूज्ड टू हैड दिस कांस्टेंट ड्रीम एवरी टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू सोने जा रहा हूँ बेड पे, जब भी सोता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चल के एक पेड़ के नीचे जाके आराम से सो रहा हूँ कहीं पे ओपन फार अवे लैंड पे. एंड मैं बहुत पीसफुली सोता था. एंड वो जितना जितना बड़ा होता गया ड्रीम्स वो वाले कम आने लगे, बट हाँ वो अभी भी मेरे गो टू पीस वाला जगह है. आई नेवर न्यू वो क्या है. देन देयर वाज अ वन टाइम कि जब मैं जा रहा था वहाँ पे देखा कोई और है ना, सेम मेरी उम्र का. अब जब भी मैं जाता हूँ इवन एट दिस एज, आई व्हेन आई एम इन दैट ड्रीम, आई एम अ किड, मेरे वही फाइव सिक्स क्लास में या फोर्थ फिफ्थ क्लास में बच्चा जा रहा सोने. तो मैंने कहा मेरे एज का कोई सो रहा है वहाँ पे लड़का. एंड मैंने कहा मेरी जगह है ये कौन है सोने वाला. ठीक है. तो मैं कुछ नहीं पूछा, नहीं, मैं जाके लेट गया, सोया. देन आई वोक अप एंड ड्रीम्स में अलग अलग होते हैं. थोड़ी देर बाद बात, यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, तो मैं बात कर रहा था उससे कुछ वगैरह, है ना. एंड हम वही बात कर रहे थे, आज हम इतने भागे, इतने कूदे, इतने घूमे, है ना, ये सब किया, वो वहाँ पे पहाड़ है, बचपन वाली बातें थे वगैरह वगैरह. तो ही वाज शोइंग मी समथिंग समथिंग ऐसे. तो आई सॉ मार्क्स ऑन हिज हैंड्स. आई स्टार्ट आस्किंग ये मार्क्स क्या है, मतलब ये क्या, कैसे लगी वगैरह. ही नेवर सेड कि क्या था ये था. ठीक है. एंड आई सेड यू फाइन. उसने कहा मैं ठीक हूँ. ये मेरे को लगा बच्चे हैं तो खेलते रहते हम, तो गिरते रहते, चोट लगती रहती है. एंड देन लेटर ऑन समवेयर डाउन द लाइन आई रियलाइज्ड आई एम क्रिश्चियन, आई यूज्ड टू गो टू चर्च, एंड समवन सेड इन बाइबल एक स्टोरी में था व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज, यू नो, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर 3 days ही वाज बोर्न अगेन. ठीक है. द फर्स्ट थिंग हिज अपोस्टल डिडंट बिलीव कि दिस इज रियली जीसस क्राइस्ट. फर्स्ट अपोस्टल आस्क्ड शो मी योर हैंड्स, आई वांट टू सी द नेल मार्क्स. And Jesus Christ showed it. And I think my church में था, randomly कभी था, and there was this priest saying this, and that's when it hit me, यार, oh, okay. And that's when I realized कि maybe it was a vision of Jesus Christ, maybe it was, but I'm not sure. But yeah, I felt that strong spiritual presence and all. From that time, I feel like, yeah, there's something strong spiritually connected to me. And How do you get that feeling? just because, uncle, I feel protected with that, because I feel like I am close to him in that terms. And this came naturally. I don't feel like कि ये मेरे पास पहले कहीं से सुना था या कुछ किया था. I just randomly came out क्योंकि बचपन में था. And that vision, and it's like आपने कुछ पढ़ा, देखने काफी टाइम बाद आपने, you start making sense of it. मैं इससे पहले उसको सेंस बनाने की कोशिश नहीं करता. Whatever it was happening for a reason. That's it. And then later on when I start to find out कि क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या था, दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड. एंड इट एक्चुअली हेल्प मी ग्रो अ लॉट इन स्पिरिचुअल वेज टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नो रिलीजन और गॉड पर से. रिलीजन सबने बनाया हुआ अलग अलग चीज़ें. दे ऑल, देयर इज गॉड इन वन वे, है ना, बट ऑल गॉड्स पर्पस इज टू गाइड यू थ्रू दिस लाइफ, यहाँ पे सही रास्ते में ले जाए. एलन वॉट्स आपके जिंदगी में कब आया? हाँ, इंटरेस्टिंग. मैं एलन वॉट्स इंटरेस्टिंगली मेरे यूट्यूब प्लेलिस्ट में से बजा था अपने आप. मैं रात को स्लीप हिप्नोसिस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था. तो उसकी क्या जरूरत पड़ी? ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी अंकल, क्योंकि वो मेडिटेशन लेवल ऑफ आई गेट स्टेट इट, ऑफ आई माइंड गेट वाज रियली नाइस, जी जी पीसफुल, है ना. तो ईयरफोन्स लगा के आई यूज्ड टू लिसन टू सम म्यूजिक. एंड आई डोंट नो कैसे वाले म्यूजिक थे, कुछ में अलग अलग टाइप थे. 420 हर्ट्ज, 520 हर्ट्ज, 620, 725, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ट्ज एंड फ्रीक्वेंसी. आई मैं उनको एक्सप्लोर कर रहा था कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी से अलग अलग ड्रीम्स क्या आते हैं, विजन्स क्या आते हैं, या माइंड में क्या इफेक्ट पड़ता है, कितना मैं फ्रेश वेक कर पाता हूँ, जग पाता हूँ, है ना. तो ऐसे ऐसे एक बार इट्स रैंडमली स्टार्टेड प्लेइंग चिल हाउस टाइप म्यूजिक था इसमें, एलन वॉट्स चिल हाउस म्यूजिक, एंड समवन इज गाइडिंग मी थ्रू इट. एंड आई रियली लाइक दिस वॉइस. मैंने फिर वो उस टाइम पे आई वाज अवेक, आई ओपन इट एंड आई रेड इट वाज एलन वॉट्स चिल वॉट्स, है ना. देन आई स्टार्ट रिसर्चिंग मोर अबाउट इट. आई वेंट थ्रू दैट एंटायर थिंग फर्स्ट, वो पूरा सुना मैंने. उसके बाद मैंने क्या कहते हैं एलन वॉट्स को रिसर्च किया, एंड उसके एक दो स्पीचेस के थ्रू गया. He's a very wise man. जिस तरीके से he says things, I'm very happy. I really like it, and it opens a lot of my, you know, thoughts. जो मेरे को लगता था कि thoughts एक ही side से है, but when he started saying things कि you have to realize some things, that's when I realized कि हाँ, there is a different way of looking at इसकी things. जरूरत आपको क्यों पड़ी? आप जो
डिफरेंट हर्ट्स की बात कर रहे हैं, द हाँ, साउंड. I was just experimenting, uncle, experimenting to different vibrancy Even and the frequency. experiment, why did you want to experiment with vibration frequency? Good question. I had a very high pressure job उस टाइम दर्शकों, पे. हाँ. इनको मैं थैंक यू कहता हूँ, मेरे क्वेश्चंस को इन्होंने गुड क्वेश्चन बोला है, अप्रिशिएटिंग. Good question, uncle. इसीलिए मैंने Actually, बोला yeah. है पॉडकास्ट में ये इधर होने चाहिए. टेल मी, व्हाट Uh, वाज So, uncle, trigger? at a very young age, I got into a good job. Hmm. ठीक है, one of a startup company. It's now a very big company. I left it a long time. I was a third founding member. So, at my age, I was heading an entire operation with operation and for logistics and warehousing. ठीक है, and I was very young. I was not very much aware of what I was doing in that trip क्योंकि मेरा 14 नहीं था. But I was since I was with that company at the starting age, I learned, I built, and we grew together. And at that time जब तक हो गया ये 3-4 at the end of third year itself, it was a very high pressure job. 10 minutes delivery सब आ गए थे. We are doing same day deliveries वगैरह. So मेरा as a head of operations for the north region, it was very high pressure job. I used to feel it very high pressure क्योंकि there I'm listening to 200-400 people problems, faces, issues तो daily प्रेशर basis. मेड यू लुक फॉर दैट that पीस. that pressure and घर आने के बाद भी I was always in worry कि कुछ खराब ना हो जाए, next day problems ना आए, and next day मेरे को fight करना पड़ेगा. So I was not able to sleep peacefully, or you say my mind was constantly thinking, constantly. I was not able to put a stop to it कि थोड़ी देर थम जा, है ना. That's when I realized कि your mind works on a frequency, and मेरे हर लेवल time ऑफ पूरे दिन से फ्रीक्वेंसी. कान में शोर चलता था. So that's why I tried different kinds of frequency. I started exploring कि हाँ, just to calm down my mind, and from And in there, that process in that process, I you learned got to meet Mr. Alan Watts, Alan Watts. Yes, podcast and other things. उसने आपको बहुत हेल्प किया. he did. He did. हम्म. He did. And एक journey आता है uncle कि if I stay there, I was at that part कि I mean, I wouldn't call myself highly successful or anything, but I was good at what I was doing, very good. And at very young age, I mean, I was 24-25, उसी टाइम पे मेरा पास मतलब मेरे अंडर ही काफ़ी कोऑर्डिनेट्स थे, मेरे एमबीए ग्रेजुएट्स वगैरह भी थे. इट नेवर मेड सेंस फॉर मी कि वाओ, मतलब एमबीए ग्रेजुएट्स ऐसे जॉब्स आके ले रहे हैं, कर रहे हैं. जॉब के प्रॉब्लम्स होते थे उस टाइम पे, But यू एंड listening ऑल to ऑफ you, देम. it feels like only you are the person who is blessed by Jesus. It is. No. Everyone is blessed, uncle. It's when you आप You दूसरी चीजों acknowledge में it. dwell हो जाते हो ना, तो you don't get time to look at मैं it. थोड़ा सा एम्बेरसिंग कर रहा था वो सिचुएशन आपके लिए. एंड बाय द वे ऑडियंस, आपको बताऊं, विजन इन्होंने बात की और ड्रीम की भी बात की. समटाइम पीपल आस्क मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजन एंड ड्रीम. Hmm. वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन और शुड आई? You please, sir. विजन क्या होता है, बड़ा ही क्लियर होगा आपको जब भी विजन आएगा. ड्रीम फिर भी थोड़ा सा वो उसमें उतनी क्लैरिटी नहीं रहती है, एक ब्लडनेस होता है. Hmm. बट विजन जब आपको आता है, वही सेम जैसे ड्रीम को लोग विजन में कंफ्यूज होते हैं, तो एक क्लैरिटी होती है. यू कैन रिमेंबर दोज थिंग्स. समटाइम द कलर एस्पेक्ट वुड बी वेरी क्लियर टू Hmm. यू, लाइक व्हेन आई गेट लाइक वाइट थिंग, सो देयर आर लॉट ऑफ वाइट पीपल, वी आर ऑल अमंग द वाइट पीपल. सो Hmm. तो विजन में क्लैरिटी हमेशा रहेगी, एंड समहाउ यू नो दैट इट हैज गिवन यू अ काइंड ऑफ मैसेज और समथिंग समथिंग समथिंग. Hmm. और ड्रीम को कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, वो कुछ दिन बाद आप भूल भी जाओगे. Hmm. So that's why you are able to remember the vision, because Ah. it was Jesus' vision. It was not dream. Ah. Some way he was conveying to you. और जब आप और भी अंदर जाएंगे ना आगे चल करके, Hmm. so there are good souls who try to connect to you. In between, sometimes what is happening is the pressure of life. You are not able to take it really, and then you are losing ground. You are feeling lack of confidence, this and then. Some of your guides or some people who are in your soul family and all, they try to pass on message. कई बार वो विजन के थ्रू आएंगे आपके पास, कई बार ड्रीम में भी कनेक्ट होते हैं. अगर आप एडवांस सोल हो तो आपको विजन आएगा, नहीं तो वो ड्रीम के थ्रू जो सोल यहाँ से निकल गए हैं वो आपसे कनेक्ट होकर के कन्वे करते हैं कि आई एम गुड, यू बी ऑल्सो गुड, नो प्रॉब्लम, ये वो. तो ये चीज आता है. मैंने लव की बात इसलिए छेड़ी प्रिंस, कुछ एक चैट्स में देख रहा था जब कभी हम बात किया करते थे सर्टेन चीज, जब मेरे स्टेटस पे आप कमेंट करते थे. तो आपने कुछ बातें की थी और मैं बड़ा हैरान था. कौन सा वाला अंकल पर्टिकुलरली? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीलिंग? अच्छा, दैट्स अ क्वेश्चन अब अभी मेरे को यस, पूछो. फीलिंग. यू ऑलरेडी हैव गिवन मी आंसर. मैं जानना चाहता हूँ कि फीलिंग में क्या है. और मैं हैरान था जब मैंने ये पढ़ा ना. यू नो, some people think I talk a lot about spirituality, this, that, those, and definitely I read a lot of things and here and there. पर जब आपने एक्सप्लेन किया, मैंने कहा ये क्या है, who is What this? was that Who is this? explanation, uncle? एक बार बताना. Okay,
of course, you may not be remembering it because Yeah. sometime what happens, na, something from me triggered something in you, and Right. you wrote it. But for you, audience, if you listen to this, feeling for me is more about being in the moment. Being in the moment. अगर आप आज का भी मेरा स्टेटस देखोगे तो समथिंग लाइक दिस ओनली इट इज टॉकिंग अबाउट बीइंग इन द मोमेंट अवेयर ऑफ स्पेस एंड टाइम. Basically, you are in the present moment. Thinking, I guess, this is what Mr. Prince tells me. Thinking, I guess, is more about scenarios, situations, and possibilities. For me, it usually starts with feeling, emotions, and sensing my surroundings. Then, if it leads to thinking, it often spirals into more thinking. I haven't given it much thought in a long time, but now I am starting to understand it on a deeper level. This was in response to a particular status which I had put. आपने फीलिंग की बात की, इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि एक स्पेनिश है, मैं बहुत लोगों को दिया हूँ ये बुक भी, उसने लिखी थी लॉ ऑफ लव हम्म. एंड लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. एंड दिस गाय, ये रात में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता था, यूज टू गो एस्ट्रल लेवल. वहाँ पे किसी एंजल से, आर्च एंजल से बात करते थे, एंड ही गेव हिम लॉट ऑफ इनसाइट्स विच ही कन्वर्टेड इनटू विक. एंड व्हाट दे सी, अगर आप जाओगे ना, हम्म. इनफैक्ट अभी मैं देख रहा था, एक सत्या करके इंस्टा पे बहुत अच्छा बोलते हैं, आई थिंक ही इज अ सरदार गाय. हम्म. वो भी वही कहते हैं ज़्यादातर कि ये सब फीलिंग का मैटर है. हम्म. भगवान कभी भी थिंकिंग से नहीं मिलते, बिकॉज एंड दैट्स व्हाट इन द मॉर्निंग आई वाज टेलिंग माय डॉटर आल्सो, सडन इंट्यूशन केम एंड आई विजुअलाइज्ड जस्ट विदाउट सीइंग एनीथिंग, हियर इज द माइंड, हियर आई एम, हम्म. यू नो, एंड व्हेन आई एम एसोसिएटिंग विद माइंड, वो थिंकिंग में फंस गया. राइट. और जब मैं यहाँ हूँ, देन आई एम फीलिंग द होल थिंग. तो हम्म. बड़ा अच्छा लगा था आपको, इसीलिए मैं जानना चाहता था व्हाट इज. इंटरेस्टिंगली अंकल, जब आपने पूछा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी जी बट आपने बताएं. जब पूछा था ना ये चीज, आई टुक हम्म, सम टाइम. मैंने सोचा हम्म, कि यार इट्स अ नॉट अ वन वर्ड आंसर, जैसे मेरे दोस्तों को रिप्लाई करते सिंपल वर्ड नहीं है, तो आई हम्म, गिव इट अ थॉट. हम्म, एंड एट दैट टाइम मेरे दिमाग में दो चीजें आया था. इट्स अबाउट टाइम, हम्म, टाइम लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. And that's when I realized कि emotions, feelings क्या चीज़ होते हैं. when that's when I started typing इस चीज़ हम्म, पे आपको रिप्लाई हम्म, करने में हम्म, कि being in the presence and all, thinking में क्या डिफरेंस है and feeling में क्या डिफरेंस है. क्योंकि एंड मैंने अपने वाला एक्सप्लेनेशन ही आपको दिया है जो मैं फील करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए यूजुअली व्हेन आई थिंक हम्म, सिनेरियोज ओवर सिनेरियोज, एंड उसको भी कंट्रोल करना, थोड़ा मैनेज करना सीख रहा हूँ. बट फीलिंग्स फॉर मी इट्स वेरी क्लियर हम्म, कि you are at that moment, space, at that special time with a हम्म, person or with someone. For that, at that time, I'd stop looking at the clock or something. जैसे हमारा conversation अभी हो रहा है, हम्म, हमने लास्ट पता नहीं टाइम कब नोटिस ही किया होगा, है हम्म, ना. तो आई स्टॉप लुकिंग, क्योंकि उस पॉइंट के लिए मेरे लिए टाइम मीनिंगलेस है. वी आर एट द प्रेजेंट इटसेल्फ. हम्म, So that inspired me to send you that message. प्रायोरिटाइज नहीं करता था मैं, हम्म, ऑब्वियसली इतने बिजी लाइफ में कोई ढूंढता नहीं था. बट हाँ, कहीं ना कहीं योर सोल इज थर्स्टी टू टॉक अबाउट दिस, किसी से शेयर करें, है ना. एंड दैट्स व्हेन आपके साथ जब बात की शुरुआत में, आई स्टिल रिमेंबर आवर फर्स्ट कॉफी, जब हम मिले थे बात कर रहे थे. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज आपके और मेरे थॉट्स काफ़ी सिमिलर हैं इन चीज़ों में. एंड अब मेरे थॉट्स को एक मीनिंग भी मिल रहा है कि हाँ, वाई आई फील इन सर्टन वेज, वाई आई डू सर्टन वेज, है ना. एंड it makes me happy कि there is a rightful way to do it and to follow the right things. So हाँ, सो आपने गाइड किया मेरे को काफ़ी, and I don't think if I haven't met you तो I would never be talking about this प्रिंस, ऑन to ए anyone. सीरियस नोट आपको हम्म. बताऊं, जब आप जैसे जैसे एडवांस होते जाओगे ना, हर एक चीज आपको गाइड करती है. हम्म. द मोर अवेयर यू आर, बिलीव मी, द मोर अवेयर यू आर, लेसर योर ईगो इज. हम्म. ईगो हमारा एक ना सेल्फ को क्रिएट करता है, मैं ये हूँ. जैसे जैसे आपका ईगो कम होगा, अवेयर होते जाओगे ना, बिलीव मी, आप एक भिखारी को भी वैल्यू देना शुरू Correct. करोगे, तो पाओगे उसने अपने बिहेवियर में कुछ सिखा के चला गया आपको. Correct. लेकिन हमारा ईगो ऐसा होता है कि अरे ये कौन है, भिखारी है, ये हम्म. कौन है, लेबर है, ये कौन है, गार्ड है. तो उस चक्कर में हम समझ नहीं पाते. नहीं अदरवाइज पाते. एवरीथिंग, एवरी सिचुएशन इज अ गाइड. Correct. तो क्योंकि आप जानते ही हो, आपने भी अपने उसमें सुना होगा कि सब कुछ एक हायर पावर करा रहा है. हम्म. तो हायर पावर अगर हमें हमारे थ्रू किसी को गाइड कर रहा है, तो मे बी दैट पावर इज यूजिंग माई ग्रे हेयर. और उसी तरह जब मैं आपके मैसेज आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, Right. तो आप शायद, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, बट आप मुझे गाइड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा ना. तो नेक्स्ट टाइम जब आप पॉडकास्ट करोगे मेरे साथ और आप पूछोगे तो मैं क्या सीखा, मे बी दैट इटसेल्फ विल बी अ हायर लर्निंग फॉर यू, कि यार मेरे थ्रू इन्होंने क्या सीखा होगा, यू नो. तब आप सीखने के Interesting. प्रोसेस को ही आप समझने की कोशिश करोगे कि अच्छा, ऐसी भी चीज़ें सिखा जाती हैं.
तो हम्म इसीलिए आपका ईगो या हमारा ईगो जब कंट्रोल में आता है तभी हर चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होती है। और जेंजी के बारे में आपको बताऊं, चूंकि आपने बोला उनको हम्म गाइड करने का, कोई गाइडेंस नहीं है। हम्म अगर आपको एक सिंपल बॉटम लाइन क्या है कि स्पिरिचुअलिटी हम्म मटेरियलिटी से सेपरेट नहीं है। द वे यू लुक एट इट, अगर हमने पैसे को बना लिया कि हमें इसी से मिलेगा, हम्म तो आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो आप फीलिंग में नहीं जा रहे हो, आप माइंड के थ्रू जा रहे हो। हम्म आप वो पैसे तो कमा रहे हो लेकिन उसको फील नहीं कर पा रहे हो ना, आपके करेक्ट। पास टाइम नहीं है। तो आपने बहुत अच्छा बोला हुआ है ना कि फीलिंग के लेवल पे जियो। हम्म तो जब फीलिंग के मूवमेंट। लेवल पे जिएंगे तो ऑफ कोर्स आपको जो चाहिए आप करो, जॉब भी करो, ये करो वो करो, बट एक लिमिट पे आप रुकने की प्रोसेस करोगे कि यार मैं कमा तो रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ, हम्म मुझे अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाना चाहिए, ये करना चाहिए। हम्म सो दे हैव टू गिव अ थॉट हाउ टू बैलेंस हार्ट एंड माइंड। हार्ट का मतलब हो गया फीलिंग, मुझे एंजॉय भी करना है। माइंड का मतलब ठीक है, इस समय समय का ऐसा है कि इट इज़ ड्राइंग मोर पावर और अटेंशन फ्रॉम यू। हम्म एक लिमिटेड आप दो और एक के उसके बाद रुक जाइए। तो ये उनको ही समझना पड़ेगा, कोई बाहर से गाइड नहीं कर पाएगा। हम्म पैसा एंड कमाओ। हाउ हाउ कैन, अगर कोई इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकता है डे टू डे लाइफ में, अगर करना है तो? मेरा मानना है डे टू डे लाइफ में अगर आपको जाना है तो माइंड से बियॉन्ड जाओ। हम्म मैं अभी नहीं कहूँगा कि आप किताब पढ़ो, ये करो वो करो, बट आप जीना शुरू करो फीलिंग लेवल पे, जो आपने ही बोला है। हम्म चाय पीते हो तो चाय पियो, टेस्ट लो ना, उस समय फ़ोन अलग कर दो। हम्म फ़ोन अगर करते हो, आपने बोला अगर आप रोमांस के मूड में हैं, किसी इंटीमेसी के मूड हम्म में हैं, तो सब ड्रॉप कर दो, आप उसमें रहो। हम्म तो जहाँ भी हो आप उसको एंजॉय करो। सरस मेला लगा हुआ है, अगर आप वहाँ जा रहे हो हम्म तो उन दीदीज का चाय पियो ना, उनके हाँ। समोसे वाह। खाओ। फिर उस समय फ़ोन को अलग कर दो, जीपे के अलावा। हम्म तो आप जब उसमें करने लगोगे तो नेचुरली आप थोड़ा थोड़ा टाइम देना शुरू करोगे। अभी मैं बोलूँगा उसको टाइम दोगे तो आपको, अगर यार मुझे काम करना है, मुझे इतने कमाने में टाइम, क्या मेरे पास टाइम नहीं है। हम्म बट मैं अगर आपको बोलूँ जीना शुरू करो, चाय खुद एक बनाओ सुबह, हम्म अपने माँ बाप को पिलाओ, इन केस यू आर टॉकिंग अबाउट जेंजी। डांस विद द कॉस्मोस, डांस विद द नेचर। डांस विद द नेचर तो जब इटसेल्फ। उनसे आप मर्ज करोगे हम्म तभी तो फील करोगे ना। राइट। तो बहुत सिंपल है, दे डोंट नीड एनी गाइडेंस इन ऑल, दे ओनली नीड टू लिव इन द मोमेंट एंड फील एवरीथिंग। वो वेल होगा सेड तो अंकल, वेल सेड। ये हमारा कोई नहीं है, ये सभी लोग कह गए हैं। हम्म हमने आज उसको फील किया तो हम भी उस चीज़ को बयां कर पा रहे हैं। आपको बताऊं, कहने तो बहुत को लोग कहेंगे, हम्म बट जब आप किसी को देखो ना जो कह रहा है, उसका अंदाज कैसा है, हाँ। उसने किसी के और के कहने को कह रहा है या उसने फील कर लिया इसलिए कह रहा है। बहुत लोग ये कहते हैं पता कैसे चले कौन क्या पता बोल रहा कैसे, है। वाओ, हाँ। कहने को बहुत लोग कहेंगे, बट हम्म आप देखो कि जो कह रहा है वो फीलिंग लेवल पे कह रहा है, तो उसका अंदाज बड़ा ही सिंपल होगा। और वो कहने वाला कहना होगा तो फिर वो लेक्चर शिफ्ट और उसमें लेक्चर चला पे आएगा, चला वो था। बोलेगा। तो फीलिंग दैट की कम्स कोई विद भी चीज़ बड़ी एक्सपीरियंस शांत अंकल। होगी, फीलिंग की कोई भी चीज़ बड़ी ही मॉडेस्ट वे में आपके पास हम्म आएगी। इसीलिए आपने जेन जी में देखा हर चीज़ भाग दौड़ हो रहा है, बिकॉज वी आर ड्रिवन बाय इवेंट मैनेजर्स, हम्म वी आर ड्रिवन बाय इवेंट पीपल, वी आर ड्रिवन बाय डिस्टॉर्टेड पीपल दिस ऑल्सो। हमारा बात खुद का, अगर बॉस डिस्टॉर्टेड है हम्म उसका माइंड, हम्म तो वो चाहेगा कि सबको उसी में खींच के रखो। हम्म तो you have to carve an identity for yourself, which what you did from the very beginning। और शायद हमेशा से आप थिंक कर रहे हुए हो, क्योंकि मेरी भी वही लाइफ रही है। हमेशा मैं थिंकिंग पैटर्न पे था, अपने रास्ते खुद ढूंढता था। जब मैंने अपनी कंसल्टेंसी शुरू की तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो फिर मैं एक हम्म दिन ज्योतिष ओपन किया हाँ। और मास्टरी उसमें किया। इवन टुडे पीपल से आई से, बट फ्रॉम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट हम्म फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म तो ये चलता है। प्रिंस, पॉडकास्ट तो बड़ा लंबा चला जाएगा और बड़ा अच्छा है हमारा ये डिस्कशन। मे बी सम अदर टाइम, यू नो, यू टेक माई Absolutely, सीट uncle. एंड आई टेक योर सीट। और Too early for me, I will say, नो, but with your guidance, maybe one day. maybe in humility you are saying that that is okay, but I believe you are a very good old soul. When I say old means mature soul in a young body, just because you have taken birth after me, but otherwise you are equally capable, and that's what you are doing. And you taught me, Thank, believe me, you taught me with your message on that thing. I was so very happy. तो ऑल द बेस्ट टू यू। और जो thank भी you, आपका uncle. बिग ड्रीम है, जब पूरा कर लीजिएगा 60%, तो उन मैडम को जरूर आप बताइए। Yes. हाँ, वो मैडम को भी अच्छा लगेगा कि उस मैडम को जिनको आपने कॉलेज में कहा था कि मैं आपको बाद में Yes. बताऊंगा, हाँ हाँ. आई विल कीप इट प्राइवेट, तो वो भी शायद खुश होंगे आपसे। बहुत अच्छा लगा प्रिंस आपसे, रियली Absolutely. बिलीव मी। Thank you so much, uncle. प्लेजर, प्लेजर And इट Bobby इज। Satori for having me. Yes. यस, गो ऑन डूइंग गुड इन योर करियर।